Hello students, today I am going to start our fourth chapter from the book Honeydew, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. As the title is given, Lapse of Memory, we can easily understand that it is about the loss of memory of the person whose name is Bipin Chaudhary. And this chapter is about this main character Bipin Chaudhary, who was a great book lover and who lives alone in his house, and suddenly he forgets a single incident of his life. He would learn, he would get remember, recall everything from his early childhood, but he was unable to recover to revive that particular incident which he wanted to know. So I'm going to tell you about the more other characters of this story. First one character is Bipin Chaudhary, about whom I was telling to you, and next character is Mr. Chunilal, and third character is Parimal Ghosh, and last character is the doctor. So I'm going to tell you about the story first. Before you read, do you have a good memory? Has your memory ever played any tricks on you? And now the author is asking to us, to the readers, that do we have a good memory? Have we ever played any trick on any person by his memory, by using his memory? Forgetfulness often puts you in a tight spot, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy. फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट. आप कभी किसी चीज़ को भूल जाते हैं तो आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं. बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा भूल जाएं पूरी तरह से, दैट विल ड्राइव यू क्रेजी, जो आपको बिल्कुल पागल बना देता है. इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कांट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची. In this story, it happens with Bipin Babu, who is the main character of this story, who forgets a major incident of his life, which was his visit to Ranchi, and he forgets about it totally. And when he want to recover it, revive it, but he was unable to revive that memory, so he goes nearly crazy. He has never been to Ranchi. He insists, though there are many witnesses to the contrary. What is the suspense all about? और वो कभी भी जो है सोचता है कि मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ. वो अपने आप पे प्रेशर बनाता है. उसने हर बार सोच के देखा, हर तरह से सोचा, लेकिन वो ये याद ही नहीं कर पा रहा था कि वो कभी रांची गया भी है. और बहुत सारे लोग जो है इसका साक्ष्य देते हैं कि वो रांची गया है. लेकिन इस स्टोरी के बारे में सस्पेंस क्या है? क्या वो कभी वास्तव में रांची गया है? सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर फ्रॉम द वेरी पॉइंट, बिगिनिंग पॉइंट. एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's in New Market to buy books. Here is about the habit of Bipin Chaudhary. Every Monday, from returning back from his work, बिपिन चौधरी वो ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट. वो जो है हमेशा जो है नई मार्केट में रुकते हैं, स्टे करते हैं कुछ देर के लिए, ताकि वो वहाँ पर कुछ बुक्स ख़रीद सकें. और जो बुक्स वो ख़रीदते थे वो क्या होती थी? क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स. ही हैड टू बाय एट लीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट इन थ्रू द वीक. और वो एक बार में जो है कम से कम 5 बुक्स खरीदते थे, ताकि जो है पूरे वीक के लिए उनका काम चल सके. ही लिव्ड अलोन, वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, हैड फ्यू फ्रेंड्स, एंड ही डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन द आइडल चैट. वो हमेशा वो अकेले रहते थे और एक बहुत अच्छे जो है मिलनसार व्यक्ति नहीं थे. उनके कुछ ही दोस्त थे. एंड ही डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, और वो व्यर्थ की बातों में अपना टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करते थे.
Today at Kalicharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. और आज जब वो कालीचरण में रुके हुए थे तो वो नोट करते फील करते हैं कि somebody is there who is observing him, कि कोई तो है जो उसको जो है ऑब्जर्व कर रहा है, उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं. He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. एंड जब वो टर्न करता है तो उसको दिखाई देता है एक आदमी जो उसके पीछे खड़ा हुआ था. Who now broke into a smile, थोड़ा सा विनम्र, और जो उसकी तरफ हंस रहा था. I don't suppose you recognize me. Have we met before? Asked before बिपिन बाबू. मुझे नहीं लगता कि तुमने मुझे पहचाना है. तो बिपिन बाबू इस पे पूछते हैं कि क्या हम आज से पहले कभी मिले हैं. द मैन लुक ग्रेटली सरप्राइज्ड. वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक. और अभी जो आदमी उनकी तरफ हंस रहा था वो बड़ा सरप्राइज़ हो जाता उनकी ये बात सुन के कि क्या हम पहले कभी मिले हैं. और वो उनको बताता है कि हम जो है पूरे एक वीक के लिए जो है डेली मिलते थे. आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स. और मैंने तो आपको हुड्रू फॉल्स जो कि रांची में हैं वहाँ तक जाने के लिए गाड़ी भी अरेंज करवाई थी. इन 1958 इन रांची, माई नेम इज़ परिमल घोष. एंड नाउ ही टेल्स हिम दैट इन रांची आई हेल्प्ड यू बाय अरेंजिंग अ कार फॉर यू. My name is Parimal Ghosh, and he tells his name and introduces himself by Parimal Ghosh, Ranchi. Now Bipin Babu realized that it was not he but this man who was making a mistake. Now Bipin Babu realizes that I had never been to Ranchi, so I am not the man about whom he is talking here, and he is making a mistake to identify the particular person. Bipin Babu had never been to Ranchi. He had been at the point of going several times but never made it. अब वो क्या कहते हैं कि मैं कभी जो है मैंने कई बार सोचा था कि मैं कभी रांची जाऊंगा और कई बार जो है अपना प्लानिंग की है, लेकिन मैं कभी भी जो है जा नहीं पाया. He smiled and said, "Do you know who I am?" और वो हंसता है और फिर कहता है क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ. The man raised his eyebrows. आदमी जो है अपनी भौहें उठाता है. Bit his tongue and said, "Do I know you?" Who doesn't know बिपिन चौधरी? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ. थोड़ी सी अपनी जीभ को जो है दबाते हुए बोलता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ. He talks in a very surprising manner. और कहता है कि बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता. अब इन पैराग्राफ्स में हमें क्या पता चला है कि एक जो है स्ट्रेंज मैन बिपिन बाबू के पास आता है, सामने आता है और वो बिपिन बाबू की तरफ स्माइल करता है. लेकिन बिपिन बाबू से जो है कभी नहीं मिले थे आज तक. और बिपिन बाबू से कहते हैं क्या तुम मुझे जानते हो. तो वो आदमी कहता है कि हाँ मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ. हम तो एक वीक के लिए जो है डेली मिले. जब आप रांची में गए थे तो मैंने आपके लिए हुड्रू फॉल्स जाने के लिए गाड़ी अरेंज करवाई थी. लेकिन यहाँ पर बिपिन बाबू क्या कहते हैं कि मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ. तो ये आदमी जो है ज़रूर कोई गलती कर रहा है मुझे पहचानने में. लेकिन यहाँ पर वो आदमी जो है क्या कहता है कि आपको कौन नहीं जानता, आप तो बिपिन चौधरी हो. बिपिन बाबू नाउ टर्न्ड टुवर्ड्स द बुक शेल्व्स एंड सेड, "स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक." नाउ बिपिन बाबू गेट सरप्राइज्ड और वो बुक शेल्व्स की तरफ जो है मुड़ते हैं और अभी भी वो कहते हैं कि स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक. ही इज सेइंग टू द पर्सन दैट यू हैव मेड एनी मिस्टेक बिकॉज आई एम नॉट द मैन whom you are talking about. One often does. I have never been to Ranchi. और कभी कभार जो है किसी व्यक्ति से गलती हो जाती है और तुम भी ऐसी ही गलती कर रहे हो, लेकिन मैं कभी जो है रांची नहीं गया हूँ. द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड. अब वो जो आदमी है वो बहुत तेज हंसता है जिसका नाम क्या है, परिमल घोष. What are you saying, Mr. Chaudhary? You had a fall in Hudru and cut your right knee. Now the person says to Bipin Chaudhary that, what are you saying? You have not ever been to Ranchi, but when you were in Ranchi you had a fall in Hudru
एंड योर राइट नी कट बाय दैट। और उसकी वजह से जब तुम गिरे थे तो तुम्हारी जो राइट नी है, राइट जो घुटना है, उस पर चोट भी लगी थी। आई ब्रोट यू आयोडीन, आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू द नेतारहट द नेक्स्ट डे। और मैं ही आपको वहाँ से लाया था और मैंने ही आपकी ड्रेसिंग करवाई थी और आपके लिए एक गाड़ी भी अरेंज की थी नेतारहट जाने के लिए अगले दिन। बट यू कुडेंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आप नहीं जा सके थे क्योंकि आपके घुटने में बहुत दर्द था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आप कुछ भी जो है याद नहीं कर पा रहे हैं। समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, कोई और भी था उस समय पे रांची में। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, यू स्टेड इन अ बंगलो, आप वहाँ पर एक बंगलो में रुके थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड, आपने कहा था कि मुझे जो है होटल का खाना पसंद नहीं है। एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुकड बाय अ, और कौन सा खाना पसंद करेंगे जो किसके द्वारा पकाया जाए, कुकड बाय अ बावर्ची, जो किसी बावर्ची के द्वारा पकाया हुआ खाना होगा वो आप खाना पसंद करेंगे। यू डिडंट लाइक होटल फूड। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी जो है अपनी बहन के यहाँ रुके हुए थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, ध्यान कीजिए आपका उनके साथ जो है एक बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ था, बहस हुई थी, किसके ऊपर, मून लैंडिंग के ऊपर। आई विल टेल यू मोर अबाउट यू मोर, यू ऑलवेज कैरीड अ बिग बैग विद योर बुक्स इन इट एंड ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, एम आई राइट और नॉट। नाउ परिमल घोष says to Bipin Chaudhary that you are forgetting all these things. Try to remember the things. You had a big bag in your Ranchi trip, and in that bag you were having some books. And on your sightseeing trips, जब भी आप इस तरह की ट्रिप्स पे जाते हैं तो आप वो बैग लेकर के जाते हैं। क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। Bipin Babu spoke quietly. Now Bipin Babu speaks quietly. His eyes still on the books. Which month in 58 are you talking about? Now he says that, so tell me about which month you are talking in 58. 1958 के कौन से महीने के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो अब मुझे आप ये बताइए। The man said October. Now the man said, I am talking about October month. No sir, said Bipin Babu, I spent puja in 58 with a friend in Kanpur. तो आप बिल्कुल गलत हैं। बिपिन बाबू परिमल घोष को बोलते हैं कि आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, क्योंकि मैं 58 में जो है अपने एक दोस्त के घर कानपुर में पूजा के लिए गया हुआ था। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप कोई गलती कर रहे हैं। गुड डे, और उनको जो है अलविदा बोल देते हैं। बट द मैन डिडंट गो, लेकिन वो आदमी वहाँ से नहीं गया। नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और ना ही उन्होंने जो है बात करना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, बड़ी अजीब बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन द वरांडा ऑफ योर बंगलो, एक शाम तो मैंने आपके साथ आपके बंगलो में चाय भी पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने तो अपनी फैमिली के बारे में भी बताया था। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने बताया था कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और 10 साल पहले आपने अपनी पत्नी को भी खो दिया है। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सिन, और आपका एक अकेला भाई जो है वो पागलपन की वजह से मर गया था। इनसेन मीन्स पागलपन। विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और इसी वजह से जो आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल में विजिट नहीं करना चाहते थे। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. अब बिपिन बाबू ने उसकी तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था अभी तक, और सोच रहे थे कि आदमी जो है गलती कर रहा है कोई किसी को पहचानने में। और उन्होंने अपनी बुक्स खरीदी, उनके लिए पे किया, और फिर वो दुकान को छोड़ते हुए जो है जा रहे थे। और उन्होंने देखा कि जो आदमी उनसे बातें कर रहा था, परिमल घोष, वो अभी भी जो है बड़ी सरप्राइजिंगली उनकी तरफ देख रहा था। तो यहाँ पर हमने इस पूरे पार्ट में क्या पढ़ा है। In this complete part, we came to know about Bipin Babu, who is a book lover and he lives alone in his house. He is not a good mixer. He has few friends
and once he goes to Kalicharan's market, where he goes every Monday to buy some books. And when he was buying books there, he met with the man whose name is Parimal Ghosh. And Parimal Ghosh asked him that I have met you at Ranchi when you were there, and I had helped you there also. But Bipin Babu was very confused that this man is making any mistake, because he had never been to Ranchi before that. और आज से पहले जो अभी तक जो है वो कभी रांची गए ही नहीं है. सो he didn't focus on his talks, and he tried to ignore that person. But the man looks in very surprising manner towards Bipin Babu, because he was not paying any attention towards him and not giving any response to him. Now we are going to start our next paragraph. Bipin Babu's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. अब बिपिन बाबू की कार जो है कहाँ पर पार्क थी? बर्ट्रम स्ट्रीट में लाइट हाउस सिनेमा के पास. He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga, will you? सीताराम. और वो जब गाड़ी में बैठ जाते हैं तो वो सीताराम जो उनका ड्राइवर है उससे कहते हैं कि जो है गंगा के पास से गाड़ी को ले चलो. ड्राइविंग अप द स्ट्रेंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर. और जो है जब वो वहाँ से जा रहे थे स्ट्रेंड रोड से, तब बिपिन बाबू जो है बड़ा पश्चाताप करते हैं, रिग्रेट करते हैं कि मैंने जो है इतनी ज़्यादा अटेंशन उस इंट्रूडर को क्यों दी. इंट्रूडर कौन होता है? जो बिना इजाज़त के जो है घुस आता है. और वो परिमल घोष जो थे वो भी बिना परमिशन लिए ही, बिना उनके इंटरेस्ट के उनसे बातें किए जा रहे थे. तो अब जो है बिपिन बाबू इसके ऊपर रिग्रेट करते कि मैंने क्यों उनकी बातों की तरफ इतना ध्यान दिया. He had never been to Ranchi, no question about it. Now Bipin Babu says that I had never been to Ranchi. मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ. तो ये क्वेश्चन किस बारे में कह रहा था वो? It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. और ये तो जो है अनबिलीवेबल था कि वो कोई ऐसा इंसिडेंट भूल जाए जो आज से 6 और 7 साल पहले ही हुआ था. He had an excellent memory. उनकी तो बहुत ही अच्छी याददाश्त है. Unless Bipin Babu's head reeled, was he losing his mind? Now the बिपिन बाबू जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड और कंफ्यूज थे, और वो सोचते हैं कि क्या मैं अपनी याददाश्त खो रहा हूँ. बट हाउ कुड दैट बी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस. वो डेली अपने ऑफिस में काम करते हैं. इट वॉज अ बिग फॉर्म, एक बड़ी फॉर्म है. एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और एक बहुत ही जो रिस्पॉन्सिबल जॉब उन्हें मिला है. ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग. ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, एंड येट. अब वो क्या कहते हैं कि वो किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते. ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग. आज तक जो है कोई चीज़ ऐसी गलत हुई है उसके बारे में उन्हें आज तक कभी जाना ही नहीं है. और ही वॉज ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट द इम्पोर्टेंट मीटिंग. आज ही वो कई दिनों में जो है आधे घंटे के लिए लगातार एक मीटिंग में बोले हैं, बस यही. एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम. हाउ? लेकिन जो है आज ये आदमी मेरे बारे में इतना कुछ जानता है. ये कैसे जानता है? क्योंकि वो किसी के साथ इतनी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, और उन्होंने जो है आज कई दिनों में जो है मीटिंग में आधा घंटा जो है वो भी किसी टॉपिक पर, फॉर्म के किसी टॉपिक पर बात की थी. तो अभी सोचते हैं कि हाउ दैट मैन हु वॉज इन द मार्केट नो अबाउट हिम दिस मच. He even seemed to know some intimate details. वो तो उनकी जो है कुछ पर्सनल डिटेल्स भी जानता है. द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी. वो किस बारे में जानता है? बैग ऑफ बुक्स, उनकी पत्नी की मृत्यु और उनके भाई के पागलपन के बारे में भी जानता है.
द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। सिर्फ उसकी एक ही गलती थी, वो क्या था कि वो सिर्फ मेरे रांची जाने की बात कर रहा था कि मैं कभी रांची गया हूँ। नोट वॉज इन कानपुर एट हिज, नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाई। एक गलती नहीं, बिल्कुल जो है साफ झूठ है। इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस। और 58 में तो जो है मैं पूजा में था, पूजा का टाइम था और मैं कानपुर में जो अपने दोस्त हरिदास बागची के यहाँ पर गया हुआ था। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो, देर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। और अब जो बिपिन बाबू जो है क्या कर सकते थे कि हरिदास से जो है पूछ सकते थे कि मैं 58 में तुम्हारे पास आया था, लेकिन वो फिर सोचते हैं कि क्या ज़रूरत है उनको भी लिखने की, उनसे भी पूछने की। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स एगो। और उनको ध्यान आता है कि उनका जो दोस्त हरिदास है जो कानपुर में रहता है, वो कुछ ही वीक्स पहले जो है जापान चला है अपनी वाइफ के साथ। एंड ही डिडेंट हैव हिज एड्रेस, और वो जापान का एड्रेस भी नहीं जानते हैं। सो इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो है बिपिन बाबू थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि ये आदमी जो है मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानता है, मैं तो किसी से अपने बारे में इतनी बातें करता भी नहीं हूँ। और दूसरा पॉइंट क्या है कि ये मेरी इंटीमेट जो थिंग्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में भी जानता है, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानता है, मेरी वाइफ की डेथ के बारे में जानता है, मेरे बच्चों के बारे में जानता है, मेरे भाई के पागलपन के बारे में जानता है। और उसने सिर्फ जो है इतनी सारी बातों में एक ही बात गलत की है, वो क्या है कि मैं कभी रांची गया हूँ, आज तक मैं रांची नहीं गया हूँ। बाकी जो उसने सब ठीक बोला है। और वो सोचता है कि मैं तो 58 ईयर जो 1958 की बात कर रहे हैं, तो 1958 में जो है मैं अपने दोस्त के घर गया हुआ था, उनके घर पूजा थी कानपुर में। और फिर वो अपने दोस्त से पूछना भी चाहता था कि मैं तुम्हारे यहाँ आया हुआ था, लेकिन फिर उसको ध्यान आता है कि वो तो जो है जापान गया हुआ अपनी पत्नी के साथ और वहाँ का एड्रेस उसके पास नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन इस सबूत की ज़रूरत ही क्या है। नाउ बिपिन बाबू सेज टू हिमसेल्फ दैट what is the need of this proof? He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi. वो खुद को उनको पता है कि आज तक वो कभी रांची नहीं गई हैं। एंड दैट्स वॉज दैट, और इतना ही है बस। द रिवर ब्रिज वॉज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। रिवर ब्रिज जो है वो स्टिमुलेटिंग मीन्स वो ब्रिज से जो है जा रहे थे, और फिर भी जो है उनकी माइंड में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट था, थोड़े से अपने आप को असहज महसूस करते हैं कि जो है बिपिन बाबू के दिमाग में कहीं कुछ जो है पॉइंट खटक रहे थे। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट द राइट नी। और जब वो हेस्टिंग्स के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो है वो डिसाइड करते हैं कि मैं अपनी राइट घुटने को देख लेता हूँ, ट्राउज़र को थोड़ा ऊपर करके, क्योंकि उस आदमी परिमल घोष ने बताया था कि जब वो रांची गए थे तो हुड्रू फॉल्स पे गिरने की वजह से जो उन्हें इनके घुटने में चोट आई थी। नाउ ही डिसाइडेड टू चेक दैट राइट नी। देयर वाज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। और यहाँ पर जो है जब वो ऊपर करते हैं अपने ट्राउज़र को तो उन्हें दिखाई देता है कि एक जो है 1 इंच लंबा जो है कोई पुराना कट लगा हुआ, चोट के निशान थे। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ऑकर। और बिपिन बाबू के लिए बड़ा इम्पॉसिबल था बताना कि ये इंजरी उन्हें कब जो है हुई थी, उनके साथ कब जो है उन्हें चोट लगी थी। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी। और उन्हें क्या कभी भी जो है एक बच्चे के तौर पर उनकी चाइल्डहुड में कभी चोट नहीं लगी और उनके घुटने पर कभी चोट लगी नहीं। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट। उन्होंने बहुत कोशिश की कि अपने बचपन में जा करके जो है थोड़ा सा देखे कि कब उन्हें ऐसी चोट लगी थी, लेकिन वो जो है नहीं जान सके कि ये चोट उन्हें कब लगी थी। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। अब उन्हें ध्यान आता है दिनेश मुखर्जी के बारे में, क्योंकि परिमल घोष ने उनको बताया था कि जब वो रांची में थे तो दिनेश मुखर्जी भी वहाँ पर थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम।
और सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि मुझे दिनेश मुखर्जी से इसके बारे में जानना चाहिए कि क्या मैं कभी उनसे रांची में मिला हूँ। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो थोड़ी नज़दीक रहते हैं, इन बनीनंदन स्ट्रीट। वट अबाउट गोइंग राइट नाउ, अभी जाना कैसा रहेगा उनके पास। बट देन, फिर तभी, इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, वट वुड दिनेश थिंक ऑफ इफ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कन्फर्मेशन। अब जो है वो सोचता है कि अगर जो है मैं कभी भी जो है रांची में नहीं गया हूँ और दिनेश भी ये बात कंफर्म कर देता तो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं क्यों कंफर्म कर रहा हूँ। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, और वो शायद ये जो है कंक्लूजन निकाल लेगा कि जो है शायद मैं पागल हो रहा हूँ। नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, और ये जो है बहुत बुरा होगा उनसे इस बारे में पूछना। एंड ही न्यू हाउ रुथलेस दिनेश सरकाजम कुड बी, और वो उसको पता था कि दिनेश का जो सरकाजम होगा, इसके बारे में कटाक्ष होगा, जिस तरह से उसको क्रिटिसाइज़ करेगा वो कितना बुरा होगा। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, और फिर वो अपने एयर कंडीशन कमरे में बैठे हुए थे और कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। उन्होंने एक घूंट जो है कोल्ड ड्रिंक की ली और थोड़ा सा आराम करने के लिए जो है बैठ गए, उन्होंने थोड़ा सा रिलैक्स किया। सच ए न्यूसेंस, कितना ज़्यादा मूर्ख आदमी था। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर्स पीपल्स हेयर, क्योंकि उनके पास करने के लिए ऐसे लोगों के पास कुछ नहीं होता है और इसीलिए वो जो है दूसरे लोगों की निजी ज़िंदगी में घुस जाते हैं। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ हिज न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, और डिनर करने के बाद जो अपने बेड पर चले जाते हैं और अपनी एक नई थ्रिलर बुक जो है खोल लेते हैं पढ़ने के लिए। अब वो जो है न्यू मार्केट के बारे में सारी बातें भूल चुके थे। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज इनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। अगले दिन जब वो सुबह ऑफिस में जाते हैं, बिपिन बाबू नोटिस करते हैं कि जो हर बीतते घंटे के साथ एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज इनकाउंटर वॉज, और उस आदमी के साथ जो पिछले दिन इनकाउंटर हुआ था, सामना हुआ था, वो उनके दिमाग पर जो है हावी होता जा रहा है। जितना ज़्यादा टाइम जो है बीतता जा रहा है, उस आदमी की बातें उन्हें उतनी ही ज़्यादा याद आ रही हैं। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। अगर ये आदमी जो है बिपिन बाबू के बारे में इतना कुछ जानता है तो वो जो है ऐसी बड़ी गलती उनके रांची ट्रिप के बारे में कैसे कर सकता है। वो कैसे कह सकता है कि वो कभी रांची गए हैं, जबकि जो है बिपिन बाबू कभी भी रांची नहीं गए। तो अब बिपिन बाबू जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि वो आदमी मेरे बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन उसने ये क्यों कहा कि मैं रांची गया हूँ, जबकि मुझे कभी भी याद नहीं आ रहा है कि मैं कभी रांची गया भी हूँ। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, और लंच से पहले जो है बिपिन बाबू ने डिसाइड किया कि मैं जो दिनेश मुखर्जी को कॉल करूँगा। इट वॉज़ बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन, और ये सही रहेगा कि हम जो है फ़ोन पे बातें कर लें। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो, कम से कम जो है मेरे चेहरे पर वो जो शर्म के भाव होंगे वो नहीं दिखाई देंगे। 235616, और ये जो है नंबर डायल कर रहा है वो बिपिन बाबू डायल्ड द नंबर ऑफ दिनेश मुखर्जी। हेलो, इज़ दैट दिनेश? दिस इज़ बिपिन हियर। नाउ ही स्टार्ट्स स्पीकिंग दैट, क्या आप दिनेश हैं? मैं यहाँ पर बिपिन बात कर रहा हूँ। वेल व्हाट्स द न्यूज़? आगे से आवाज़ आती कि अरे हाँ बोलिए क्या बात है। आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि 58 जो 1958 में कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आपको याद है। 58 व्हाट इंसिडेंट? कौन सा इंसिडेंट? वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर? क्या तुम उस साल जो है कलकत्ता में ही थे? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गोट टू नो। ये पहली चीज़ है जो मुझे जाननी है तुमसे। वेट जस्ट अ मिनट 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। अब वो जो दिनेश मुखर्जी वो कहते हैं रुको, मैं एक बार अपनी डायरी में अपना रिकॉर्ड चेक कर लेता हूँ कि मैं 58 में कलकत्ता में था या कहीं बाहर गया हुआ था।
फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस, 1 मिनट के लिए जो है साइलेंस, चुप्पी हो जाती है, शांति। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, बिपिन बाबू की हार्ट बीट जो है तेज़ बढ़ना शुरू हो जाती है कि दिनेश मुखर्जी का रिप्लाई क्या आएगा। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटल, उनको थोड़ा पसीना शुरू हो जाता है। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस, मैंने पता लगा लिया है, मैं जो है 58 में 2 बार बाहर गया था। वेयर, वंस इन फरवरी नियर बाय टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग, एक बार फरवरी में मैं जो है कृष्णा नगर गया था अपनी भतीजे की शादी में। एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, द ट्रिप टू रांची, और दूसरा तुम्हें तो इसके बारे में पता ही होगा कि दूसरा ट्रिप मेरा कहाँ पर था, रांची में था। यू वर देयर टू, तुम भी तो वहाँ थे। दैट्स ऑल, बस इतना ही। बट व्हाट्स ऑल द सैल्यूटिंग अबाउट, लेकिन इसके बारे में तुम इतना इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे? सैल्यूटिंग मीन्स इन्वेस्टिगेट करना, इतनी छानबीन क्यों कर रहे हो? आप जब बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी को कॉल किया था ये पता लगाने के लिए कि वो 58 में कहाँ थे, क्योंकि उस परिमल घोष ने जो है बिपिन बाबू को कहा था कि जब आप रांची गए थे तो आप के साथ जो है दिनेश मुखर्जी भी वहाँ थे। अब बिपिन बाबू सोचते हैं कि दिनेश मुखर्जी वहाँ थे तो वो मुझे ज़रूर बताएंगे इस बारे में, और उनसे पूछते हैं कि क्या 58 में कहीं बाहर गए थे, तो बताते हैं कि हाँ मैं 58 में जो है 2 जगह गया था, एक तो कृष्णा नगर पास में ही मेरे भतीजे की शादी में, और दूसरा मैं जो है रांची में गया था, वो तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप भी वहाँ पर मेरे साथ थे। और अब आप इसके बारे में इतने इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हैं? नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू एनी थैंक्स। आप जो बिपिन बाबू कहते हैं कि नहीं नहीं मैं बस जानना चाह रहा था, पूछ रहा था, कोई बात, और इसके अलावा जो है उसको धन्यवाद बोलते हैं। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन, बिपिन बाबू एकदम से रिसीवर को पटक देते हैं। एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स, और अपना सिर जो है अपने हाथों से पकड़ लेते हैं। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उनको अपना सिर जो है घूमता हुआ नजर आ रहा था। अ चिल सीम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और उनका शरीर एकदम से जो है ठंडा हो गया था। देयर वर सैंडविचेज इन हिज टिफ़िन बॉक्स, उनके टिफ़िन बॉक्स में सैंडविचेज थे, बट ही डिडेंट ईट दैम, लेकिन उन्होंने जो है वो नहीं खाए। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, उनकी भूख जो है वो ख़त्म हो गई थी। एपेटाइट मीन्स भूख। अब जो है उनकी भूख, ये जानने के बाद कि दिनेश मुखर्जी भी ये कह रहे हैं कि वो रांची में गए थे, तो उनकी भूख ख़त्म हो जाती है। अब उन्हें ये रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि शायद मैं अपनी ज़िंदगी का एक इंसिडेंट भूल गया हूँ जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। सो हेयर आर सेकेंड पार्ट completes with this paragraph. Third part we will start tomorrow. Thank you.